Hello friends, this is Karthikeya Singh, working as an assistant professor in the School of Management Sciences, Varanasi. As we are covering this third unit of business research method, and we will have almost covered the major important parts of scaling and measurement techniques, second part problem and measurement and management research, level of management, level of measurement, nominal, ordinal, interval and ratio scales. And as I've already told you, the previous lecture video is very important, in which we have already discussed nominal, ordinal, and interval scales. So you'll keep on using these concepts whenever you are going to do any kind of research. For for fourth and fifth part, we are going to merge two units, two different sections, because the syllabus is segregated. It is not following any particular textual context. So this particular thing, section 4 and section 5 is devised as per their own convenience, but it was not following any particular context. So I have merged section 4 and 5th. I'll cover it as per my convenience, and all these topics will be covered in next two lecture videos. And I have taken care of the contextual or theoretical aspect of it, and I have taken help from book Chawla and Sodhi, as well as Coopers and Sindlers. So in those two books, these attitude scaling techniques and graphic rating skills are being discussed very nicely. And the thing which was discussed in the syllabus, AK2 syllabus, I thought it needs some improvisation, because concept of scaling, rating scales, Likert scale, semantic differences scale, constant sum scales, there are two separate segregation for it. So I'll discuss all those segregation in this lecture video. And at this point of time, I also want to reiterate, like I have started covering all these video lectures in English, but later on I realized that I have to discuss things in Hindi also, so that it can reach a maximum number of people. So I'll try to uh, limit my explanation in English. I'll reiterate the same line which is being there in the slide, and then I'll explain it in Hindi, so that more number of people can understand the concept which is being discussed in these lecture videos. So let's move further. We are going to start with attitude, because in this scaling, and whenever you are going to deal with qualitative researches, attitude is the primary thing on which we usually do researches, and majority of the qualitative research are based on attitude scaling. So first we have to try to understand the concept of attitude, and then we'll move ahead. In this, as per the definition given in textbook, an attitude is viewed as an enduring disposition to respond consistently in a given manner to various aspects of the world, including persons, events, and objects. An attitude is viewed as an enduring disposition. Enduring disposition, what we learn during our lifetime, and we dispose it off to respond consistently in given manner various aspects of the world, including individual person, events, or objects. So whatever enduring disposition we usually learn in our lifetime, just like at the age of 40, if whatever I have learned, due to that learning I have built certain attitude, and it remains there, and the things which we usually behave and things which we usually see in practicality about a person, about an event, or about an object is going to reflect my attitude. इसे हिंदी में समझे तो ये बोलता है कि हम लोग जो भी इंड्योरिंग डिस्पोजिशन रखते हैं, मतलब जो अपने लाइफ टाइम में जो चीजें सीखते हैं, उससे उसके बेसिस पे हम कंसिस्टेंटली एक खास तरह से बिहेव करते हैं, किसी आदमी के पर्सपेक्टिव में, किसी इवेंट के पर्सपेक्टिव में, और किसी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में. तो जो भी इंड्योरिंग डिस्पोजिशन, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये प्रवृत्ति बोली जाती है. जो प्रवृत्ति होती है हमारे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करने की, वो ही एटीट्यूड कहा जाता है. तो एटीट्यूड कुछ नहीं, बस एक एंड्योरिंग डिस्पोजिशन है जो हम कंसिस्टेंटली किसी खास वर्ल्ड सिनेरियो में, किसी आदमी के प्रति, इवेंट के प्रति, और ऑब्जेक्ट के प्रति जो हम शो करते हैं. आगे बढ़ते हैं. एन एटीट्यूड इज अ लर्नड स्टेबल प्री डिस्पोजिशन to respond to oneself, other person, objects, or issue in a consistently favorable or unfavorable way. So what this statement is saying,
attitude is learned, which we learn during our lifetime. It is in a stable disposition. If certain kind of attitude is being built, it will remain same. Means लोगों की प्रवृत्ति सेम रहती है, तो वो it is going to remain with a particular person for a particular period of time. For responding to oneself, खुद के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अदर पर्सन दूसरों के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और किसी वस्तु और इश्यूज कंसिस्टेंटली इन ए फेवरेबल और अनफेवरेबल वे, किसी अपने लिए, दूसरों के लिए और ऑब्जेक्ट के प्रति आप कैसे फेवरेबल और अनफेवरेबल वे में आप बिहेव करते हैं, वही एटीट्यूड कहा जाता है. तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का जस्ट एन एक्सटेंशन है सेकंड स्टेटमेंट. यहाँ पे एक चीज ऐड किया गया कि एन एटीट्यूड इज ए लर्नड स्टेबल प्रीडिस्पोजिशन, जिसे हिंदी में अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने प्रवृत्ति लिखा हुआ भी है ये, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके. ये खास प्रवृत्ति होती है और एक स्टेबल प्रीडिस्पोजिशन होती है, स्टेबल प्रवृत्ति होती है आपकी, जो आप लर्न किए हुए रहते हैं अपने लाइफ टाइम में, और वो आपको गाइड करता है कि आप कैसे एक व्यक्ति के प्रति, एक खुद के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति और किसी इशू के प्रति फेवरेबल और अनफेवरेबल वे में बिहेव करें. तो यही बेसिक चीज एटीट्यूड कही जाती है. एटीट्यूड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली. एटीट्यूड कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं हो पाता. एटीट्यूड इज डिराइव्ड फ्रॉम परसेप्शंस. एटीट्यूड का बिल्डिंग ब्लॉक परसेप्शन होता है. वी यूजुअली बिल्ड सम परसेप्शन, लाइक आई हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, लाइक आई यूजुअली prefer to use Honda bikes. So I have a particular perception which is built during passes of time. Most of my bikes were Honda bikes. So I have built a certain perception about Honda brand. And on the basis of that, I have built an attitude, positive attitude towards that Honda brand. So ultimately your attitude is going to be derived from your perception. And perception building is itself a separate process. Then again it is saying attitude are indirectly observed. तो एटीट्यूड हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. एटीट्यूड आपके परसेप्शन से डिराइव किया जाता है, जिसको हम प्रवृत्ति भी बोलते हैं. और ये एटीट्यूड आर इनडायरेक्टली ऑब्जर्व्ड. हम कभी भी एटीट्यूड को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करके इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं. जैसे व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस. अगर मैं लिकट स्केल पे बोलूं, हाउ मच सेटिस्फाइड आर यू टुवर्ड्स अ सर्टेन ब्रांड, आप बोलोगे हाईली सेटिस्फाइड, somewhat satisfied, neutral, somewhat dissatisfied और highly dissatisfied. तो अगर मैं आप 5 पॉइंट के स्केल में इसको डिस्टिंग्विश करोगे, आप स्केल आउट कर दोगे, तो आप आपने एटीट्यूड को बेसिकली किसी पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेट करके उसको आप उस रेटिंग स्केल पे डाल रहे हो. यू कैन नॉट से दैट इट इज 4 kg, माई एटीट्यूड इज 4 kg towards any particular brand or product, or it is 100 quintal if I'm very positively, if I'm having highly positive attitude towards a particular brand. So we cannot say in some physical measurement terms. We always scale it down, and we create a different rating scales, then Likert scale or other types of scale to measure these attitudes. That's why this attitude and scaling a particular section of this research has been created. Let's move further. In researches, like these are the physical tools which is being used for doing research, and through this we can build, means in cognitive way, through these dispositions we usually do research. But in most of the cases in attitude, we are not going to use physical devices of measurement, but we are going to create some scale, and on the basis of that we are going to measure your attitude. Talking about constituent of attitude, attitude is being built through 3 different constituents. 3 different constituents, like it is cognitive, attitude is cognitive, attitude is built through affective intentions, and intentions or action. In all these 3 are basic building blocks of attitude. Cognitive means belief, thoughts and attributes which we usually build through our own mindset, means
our own inheritance or ability to inherit things from the lifestyle. This is cognitive part. Affective part are feeling or emotions, and the final one is intention. Intention is how we act in a particular situation is going to be considered as intention. So in the next slide, I'll give you some example also for this. But at this point of time, you can just remember that attitude can be built through three building blocks, or which are cognitive, affective, and intentions or actions. Erase these markers first. I'll take this issue to the Zoom video editor, because this marker infiltrate into the next slide. So this can be suggested to Zoom, because I'm recording all these videos on Zoom. So this can be a one suggestion to Zoom creators who are working on this. But it is a great device to record your lecture videos. I'm really thankful to this particular device, which is helping me in building these video lectures. Now, moving further, cognitive component, I have already told you in the previous slide, three building blocks of attitudes are there. So first one is cognitive, second one is affective, third one is intention or actions. So in cognitive, what we say or what we cover in cognitive component, a cognitive component represents an individual information and knowledge which we usually gain through our own brain. Cognitive is always built through our brain, means it is our own personal development which takes place during a span of time. So information and knowledge which we usually gain through our lifetime, this cognitive component is going to help us in building certain attitude. Example for this, remembering about Tupperware. If some Tupperware product like utensils has a good image in my mind, and I have used this particular utensil, their brand utensil in the past, I remember that these utensils were really good in quality, and their price was economical. So lots of positivity was there, but I'm remembering, I'm using my mind, and on the basis of that, I'm saying that uh, Tupperware as a brand is a good brand, because past experience of this particular brand is good. So whenever I'm remembering the past experience of Tupperware, I'm going to tell you, like, due to my past experience and as my mind says, this Tupperware is a good brand. So I'm using my previous recognition, past event recognition, and I'm doing it through my cognitive component or by my mind. Next, affective component summarizes person's overall feeling or emotions towards an object. Summarizes a person's overall feelings or emotions towards an object. Uh, it says whenever there is a, during your lifetime, you may feel positive or negative about a particular product. Like if I'm using certain program, I'm not going to take any particular brand's name. Uh, if you are going to use a particular brand for a regular period of time, and you usually feel good or bad about it. So if you summarize all those experiences, it will help you to build certain mindset about your particular brand or product. So if you say that, example, a tasty food is cooked in pressure cooker. So by using again and again, you have built a perception like pressure cooker food are good in terms of taste. So affective component are going to be used person's overall feelings or emotions towards an object, and it happens during a span of time. So first, cognitive is going to be built through mind, and affective is going to be built through experience, and the last one is intention or actions component. It also reflects person's expectation of future behavior, how the particular towards an object, like purchase intention to buy things in future. If I'm having certain positive perception about a particular product, in future I'm definitely going to purchase that. For example, if you are using a particular brand of television, and it has shown certain good effect, and it was consistent in terms of performance, and if you want to replace your previous television with a new one, you'll always prefer to purchase brand which you are having and you what you are experiencing for the past few years.
So again, on the basis of past experience, your future behavior will be decided, or on the basis of your future behavior, you are basically going to fix your intention or action component. इसी चीज को रिवाइज करेंगे हिंदी में, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड बिल्डिंग के: कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड इंटेंशन और एक्शन कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी, जिसके बेसिस पे वो कुछ परसेप्शन बिल्ड कर पाता है। जैसे टपरवेयर एक अच्छा प्रोडक्ट है कुकिंग यूटेंसिल्स में, तो वो टपरवेयर के बारे में अगर मेरे पास अच्छा परसेप्शन है तो उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू रिमेम्बर इट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसको मैं बोलूंगा कि टपरवेयर अच्छा ब्रांड है। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, मैंने रिमेम्बर किया कि पहले मैंने जब टपरवेयर का यूटेंसिल्स यूज किया था तो इट्स परफॉर्मेंस वाज नाइस एंड इट वाज बिट इकोनॉमिकल, इट्स क्वालिटी वाज गुड। तो ये सारी चीजें अगर मैं सामने में रखता हूँ तो मुझे, ये मेरा बेसिक कॉग्निटिव कंपोनेंट है जो मुझे हेल्प करता है अपने एटीट्यूड बिल्ड करने में। सेकंड, हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट आता है। अफेक्टिव कंपोनेंट में समराइजेस पर्सन्स ओवरऑल फीलिंग्स और इमोशंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। आपके ओवरऑल फीलिंग्स और इमोशंस को समराइज करता है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे आप प्रेशर कुकर से बनाए हुए फूड को आप अच्छा मानते हो, अगर किसी प्रेशर कुकर से आपने कोई फूड बनाया हुआ है, देन यू कंसिडर इट अ गुड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। सो वो पिछले पिछले जितने एक्सपीरियंसेस रहे सबको समराइज करने का काम करता है। तो वो अफेक्टिव कंपोनेंट आपके सारे सारे एक्सपीरियंसेस को समराइज करने का और फीलिंग और इमोशंस को समराइज करने का काम करता है, जिसके बेसिस पे आप किसी परसेप्शन और एटीट्यूड को बिल्ड कर पाते हैं। आगे चलते हैं इंटेंशन और एक्शन। आप पिछले एक्सपीरियंस पे आगे कैसे, आपके क्या चांसेस बनते हैं कि आप उसी चीज को रिपीट करने वाले हो, खरीदने वाले हो, या फिर आपका फ्यूचर एक्शन जो डिसाइड होता है उसको इंटेंशन और एक्शन कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट हैं: कॉग्निटिव, माइंड से बनने वाला; इफेक्टिव, समराइज करना प्रीवियस एक्सपीरियंस को; और इंटेंशन, आगे के फ्यूचर बिहेवियर को गाइड करना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ये तीन कंपोनेंट हैं जो आपके एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं। इसको एक एनिमेशन में, स्लाइड में जो होता है बेसिक, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इफेक्टिवनेस, और ये अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव अस एटीट्यूड। सो एटीट्यूड constituent body are behavior, cognitive and affective components. So let's move further, but before that, erase it and then we'll move ahead. Now we have already defined scaling, and we have already discussed that in a scaling, three constituent of scale attitude is basically attitude are behavioral component, cognitive component, and intention or actions. So on the basis of three building blocks of attitude, how these things are going to be scaled, we have to learn it one by one. So we are going to start with the basic concept of scaling. Scaling describes the procedure of assigning numbers to various degrees of opinion, attitude, and other concepts. Scaling is basically describe the procedure of assigning numbers to various degrees of opinion. Take for an example, like how much satisfied are you with a particular brand? Name any particular, take any particular brand name, and you are going to check opinion, attitude towards a particular brand. So you are going to rate that particular product or brand in terms of any continuum scale. So assigning a particular number to various degrees of opinion or attitude is going to be termed as scaling. स्केलिंग और कुछ नहीं होता, एक नंबर असाइन करना होता है अपने वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट के लिए। तो स्केलिंग क्या करेगा? स्केलिंग एक प्रोसीजर है जिसमें आप एक नंबर असाइन करते हो अपने वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन को लेके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो स्केलिंग आपको एक नंबर असाइन कर देता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव वे में आप जैसे परसीव करते हो। तो एटीट्यूड को अगर हमको स्केल डाउन करना है तो स्केल हम एक नंबर के रूप में उसको असाइन करेंगे, और पॉजिटिव को कुछ नंबर देंगे, नेगेटिव को कुछ नंबर देंगे, जिसके बेसिस पे हम स्केल करके एटीट्यूड को स्केल डाउन करके उसको स्टडी कर पाएंगे। आगे कहता है, इट मे बी स्टेटेड हियर दैट स्केल इज कंटिन्यूअम कंसिस्टिंग ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी कंटिन्यूअम में हाईएस्ट पॉइंट होगा ही होगा। इन टर्म्स ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रेफरेंस, फेवरेबलनेस,
etc. and lowest point along with several intermediate points between these two extreme points. तो आगे चल के हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट होता है अलग अलग प्रेफरेंस कैटेगरीज में, जिसके बेसिस पे हम स्केल डिजाइन करते हैं. आपको आगे एग्जांपल दी जाएंगे तो आप शायद ज्यादा उससे अच्छे से रिलेट कर पाए, लेकिन स्केल के बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, उस पे एक हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा और लोवेस्ट पॉइंट होगा, और उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेफरेंसेस के बेसिस पे और फेवरेबलनेस के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर देंगे. ठीक है, उसमें सेवरल इंटरमीडिएट पॉइंट होंगे, उसी को हम एक्सट्रीम और स्केलिंग टेक्निक्स बोलते हैं. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. One question I have considered: how satisfied are you with the particular brand XYZ? Anything you can consider. So highly satisfied and highly dissatisfied, these are the two extremes, and they read this definition simultaneously. A scale is a continuum, so this is a continuum from highly satisfied to highly dissatisfied. ये एक continuum है highly dissatisfied से highly dissatisfied के बीच में. तो scale एक क्या होगा, एक continuum होगा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, जिसमें आपके प्रेफरेंसेस और फेवरेबलनेस को रेट किया जाएगा. जैसे हम लोगों ने प्रेफरेंस सेटिस्फाइड और फेवरेबलनेस सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड के बीच में हमने उसको स्केल डाउन किया हुआ है. उसमें सेवरल इंटरमीडिएट, फिर बोलता है कि उस पर लोवेस्ट पॉइंट भी होगा. तो लोवेस्ट पॉइंट मतलब हाईली डिससेटिस्फाइड, ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया. हाईएस्ट पॉइंट हो गया हाईली सेटिस्फाइड. तो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट भी हो गया. उसमें कुछ सेवरल इंटरमीडिएट पॉइंट भी होंगे, जैसे हाईली सेटिस्फाइड और हाईली डिससेटिस्फाइड के बीच में सेटिस्फाइड, न्यूट्रल और डिससेटिस्फाइड भी हैं. तो एक कंटिन्यूम होगा, कंटिन्यूम पे एक हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट स्केल होंगे, उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएरीज होंगे जो आपके प्रेफरेंस और चॉइस को बताएंगे और बेसिकली स्केल डाउन करेंगे. इसी पूरे प्रोसीजर को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं. नंबर असाइन करना आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को, और उस पे नंबर में एक कंटिन्यूम होता है जो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक मूव करता है, और उसमें दो कंटिन्यूम के बीच में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट भी होते हैं जिसको हम स्केल डाउन करते हैं. और उससे आपके जैसे सेटिस्फैक्शन लेवल गेज करना है, तो मैंने हाईली सेटिस्फाइड और हाईली डिससेटिस्फाइड दो एक्सट्रीम बना लिए, और उसके बीच में तीन इंटरमीडिएट डाल दिए. जो एक सेटिस्फैक्शन समवॉट सेटिस्फाइड है तो ये यूज करूंगा, समवॉट डिससेटिस्फाइड है तो ये यूज करूंगा, और न्यूट्रल हूं, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द माय प्रेफरेंस, सो आई विल रेट इट एज न्यूट्रल. तो ये पूरी प्रोसेस ही स्केलिंग बोली जाती है. अब इसके बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. विल स्टडी इट इन फर्दर स्लाइड्स. Now, selecting a measurement scale is a difficult task. That's why I have separately mentioning these things. I'll move very fast and I'll repeat the same concept in Hindi also one by one. So let's start with these are the basic selecting measurement scale. These are the criteria on the basis of which we usually select measurement scale. मेजरमेंट स्केल को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं. हम किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, वी आर गोइंग टू कवर दिस थ्रू दिस स्लाइड्स. पहला बोलता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव. अगर आप किसी मेजरमेंट स्केल को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब, research objective are too numerous to list, including but not limited to studies of the attitude change, persuasion, awareness, purchase intention, cognition and action, actual repeat and purchase. ये तो कुछ चीजें होंगी जो मैं मेंशन कर पा रहा हूँ. इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव को आपको पहले, जो अगर आप कहीं स्केलिंग करने जाते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, एंड दिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर स्केल. तो पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसकी पूरी बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, जैसे आपके एटीट्यूड चेंज, परसुएशन, अवेयरनेस, परचेज इंटेंशन, कॉग्निशन, एक्शन, एक्चुअल एंड रिपीट परचेज. दीज आर द डिफरेंट इन कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव. ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कुछ कंस्टिट्यूएंट हैं जो लिस्ट की जा सकती है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव के रूप में लेते हैं. और इन ऑब्जेक्टिव को फिक्स करने के, मैं एटीट्यूड पे काम करना चाहता हूँ, एटीट्यूड चेंज करने पे काम करना चाहता हूँ, परसुएशन पे काम करना चाहता हूँ, अवेयरनेस. दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू डिफरेंट रिसर्च स्टडीज. आपका कुछ भी हो सकता है.
आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो रिसर्चर क्या करेगा, आगे रिसर्चर जब काम करता है तो दे यूजुअली फेस टू जनरल टाइप्स ऑफ स्केलिंग ऑब्जेक्टिव्स। दो तरह के जनरल स्केलिंग ऑब्जेक्टिव तय की जाती हैं रिसर्च स्टार्ट करने से पहले और मेजरमेंट स्केल चूज करने से पहले। तो वो बेसिक दो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये दो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बेसिकली मेजरमेंट स्केलिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेट इन द स्टडी। एक होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिसिपेंट का मेजर करना, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि कैरेक्टर पार्टिसिपेंट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर करें। दूसरा, पार्टिसिपेंट्स एज जजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंडिकेट्स प्रेजेंटेड टू देम। दो है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में हम काम करें। दूसरा, पार्टिसिपेंट को हम जज बना दें और उनसे किसी ऑब्जेक्ट और इंडिकेट्स, मतलब जो पैरामीटर्स उनको दिया जाए उसके पीछे उसके एवज में उनसे हम कुछ फीडबैक लें। तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं आपके स्केलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करने के लिए। एक एग्जांपल है इसमें, अगर उस एग्जांपल को देखें तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। कस्टमर लोगो चॉइस फॉर सेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये एक एग्जांपल है जो दोनों ऑब्जेक्टिव को लेके एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, अब कोई लोगो क्रिएट करना है तो लोगो क्रिएट किसी आपके पास सेट ऑब्जेक्टिव है कंपनी के पास, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक लोगो डिवाइस करना है। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अगर आप पार्टिसिपेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हो लोगो बिल्ड करने के लिए, तो आपको पार्टिसिपेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जानोगे तो आप लोगो डिजाइन कर पाओगे। अगर आप पार्टिसिपेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानोगे तो लोगो डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो आपको किस तरह के लोगो को इंक्लूड करना चाहिए जिससे आप उनसे लोगो डिजाइन करवा सको। अगर एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के एट्रीब्यूट वो होंगे तभी वो लोगो डिजाइन कर पाएगा, अगर उसमें वो एट्रीब्यूट्स नहीं है तो वो लोगो डिजाइन नहीं कर पाएगा। अब मैं पूछूं दूसरे ऑब्जेक्टिव के थ्रू अगर मैं चलूं, तो दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव के थ्रू मुझे इसी एग्जांपल के लिए क्या होगा कि कस्टमर लोगो बनाता है, कस्टमर के लिए मुझे लोगो डिजाइन करना है, तो उस लोगो में मैं कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करूं। पहले के लिए तो मैंने पूछ दिया कि पार्टिसिपेंट को क्या क्या करना चाहिए, कैसा पार्टिसिपेंट होना चाहिए लोगो डिजाइन करने के लिए, पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ। दूसरे ऑब्जेक्टिव में मैं क्या बोलता हूँ, दूसरे ऑब्जेक्टिव में बोलता हूँ कि पार्टिसिपेंट को मैं जज बना दूं और उनसे पूछूं कि मैं जो लोगो डिजाइन करने वाला हूं उस लोगो में मुझे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स देने चाहिए एज पर द ऑब्जेक्टिव। तो ये अगर मैं इतना ख्याल रख पाता हूं तो मैं ये दोनों बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी स्केलिंग टेक्निक को चूज करने से पहले तय कर पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, स्केलिंग टेक्निक यूज करने से और स्केलिंग टेक्निक सेलेक्ट करने से पहले you have to judge your research objective or you have to consider your research objective, and then only you are going to deal with the subject matter. Next constituent is response type. Now response type can be rating, ranking, categorization and sorting. Rating means you rate people on the basis of their performance. Ranking, you rank people on the basis of your own perception. Categorization, we categorize people into certain categories and we divide people into several groups, and this is going to be categorization. You can take it as a heterogeneous group into homogeneous one. Categorization, we usually follow it. And sorting, we jot down the largest member of, or largest group, and we sort as per the characteristics. Like if you want to make a pile of all this data submitted and all the people who are having positive perception or people who are having negative perception of a particular brand, so if I ask everybody to write a feedback on a piece of paper and I compile them, I pile up on my desk, and I'll see the basic means height of that piled up papers, and that piled up papers is going to tell me that which particular perception is more prevalent from respondents ends. So that particular process is going to be called as sorting. So I'll cover it one by one. So we'll start with rating. Rating scale is used when participants score an object or an indicant without making a direct comparison to another object or attitude. Rating scale, they don't just the participant score an object on indicant without making direct comparison. They just rate without comparing it with any particular product or any particular brand. They just rate a particular
but without comparing with another product or brand. Second one, ranking scales. In ranking constraints the study participant to make comparison and determining order among two or more properties. Here we rank amongst two or different properties. Like if you want to rate food quality of uh, any particular restaurant, so you can rank their quality, their pricing, their ambience, their service, and because all these things can be compared amongst each other, so you are going to rank those attributes. So if you are rating, that means you are not comparing things. If you are ranking, then you are ranking by comparing things. Categorization asks participants to put themselves or property indicators to groups or categories. So you usually categorize people under certain categories. So that categorization, like take an example of a class. In class of MBA, people from the age group of 20 to 22, 20 से 21 साल के बीच के लोग होते हैं एमबीए के क्लास में. तो अगर मैं बोलूं कि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसको मैं होमोजीनियस बनाना चाहता हूं, 20 वालों को अलग कर दिया, 21 वालों को अलग कर दिया, 22 वालों को अलग कर दिया, तो 20 वाले एक ग्रुप हो गए, 21 वाले एक ग्रुप हो गए, 22 वाले. तो ये कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं. सॉर्टिंग रिक्वायर्स पार्टिसिपेंट सॉर्ट कार्ड्स रिप्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट इनटू पाइल्स यूजिंग क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड बाय द रिसर्चर. आपको एक पाइल बनाना पड़ता है. जैसे मैंने एग्जांपल अभी शुरुआत में ही बताया था कि आपसे एक फीडबैक फॉर्म दिया गया, आपसे पूछा गया दोज पीपल हु थिंक पॉजिटिव अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड write something on a piece of paper, and those who feel negative about a particular brand, then you are also expected to write something on the piece of paper. तो आप पॉजिटिव वालों का एक डेटा पाइल अप करते हो और निगेटिव एटीट्यूड वालों का डेटा पाइल अप करते हो, या फिर जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते हो उनको पाइल अप करते हो, एंड देन यू कंपेयर इट विच पाइल इज मोर and height of which particular pile is more. So on the basis of that you take decision. So ये सॉर्टिंग है एक खास कैटेगराइजेशन में एक जगह डाटा को सॉर्ट करके इकट्ठा करने का और पाइल अप बनाने का, जिसके बेसिस पे आप अच्छा और बुरा में कंसेप्ट में डिफरेंशिएट कर सको. तो रेटिंग स्केल्स क्या हुआ? रेटिंग जहां पे हम चीजों को रेट करें लेकिन उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हम ना करें. एन ऑब्जेक्ट और इंडिकेट विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट. रैंकिंग क्या हो गया? Constrain the study participant to make comparison and determining order among two or more properties or indicators. तो दो से अधिक प्रॉपर्टीज के बीच में अगर आपको कंपेयर करना पड़े तो रैंकिंग स्केल होगा. कैटेगराइजेशन एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे चीजों को कैटेगराइज कर देना कैटेगराइजेशन बोला जाता है. सॉर्टिंग बोला कि किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड और परसेप्शन को लेके उस चीज का पाइल अप बनाना और उसको सॉर्ट करके अलग कर देना. तो एक जैसी चीजें एक जगह रहें उसको सॉर्टिंग बोलते हैं. जैसे आप जनरली अगर आप एक्सेल पे खेलते होगे तो एक्सेल पे भी आप सॉर्ट करते हो. सॉर्ट क्या करते हो? मैंने डिपार्टमेंट बच्चों का दे दिया, स्पेशलाइजेशन दे दिया, मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस. तो मार्केटिंग जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मार्केटिंग वाले एक जगह आ जाएंगे. उसी तरह से एचआर वाले अगर मैं सॉर्ट करूं तो एचआर वाले आ जाएंगे, फाइनेंस सॉर्ट करूं तो फाइनेंस वाले आ जाएंगे. तो अगर ये मैं सॉर्टिंग रेगुलर बेसिस पे करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उन चीजों को सॉर्टिंग के बेसिस पे, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग कर रहा हूं. तो दीज आर द फोर. अब इसके बाद दीज आर द फोर बेसिक रिस्पॉन्स टाइप्स. वो आपको किसी भी स्केलिंग चूज करने से पहले आपको तय करना पड़ता है कि आप किस तरह के मेजरमेंट स्केल को आप लेके आगे बढ़ने वाले हो. नाउ मूव. इन सब के एग्जाम्पल्स हैं. मुझे अपना वीडियो लेक्चर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस भी होगा, लेकिन आई रिटरेट ऑल दिस पॉइंट्स. पहला जैसे रेटिंग स्केल्स के लिए मे बी आस्क्ड टू इवैल्यूएट द स्टाइलिंग ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल ऑन अ 7 पॉइंट स्केल. यहाँ पे आप देखो रेटिंग स्केल कर रहे हो, आप 7 पॉइंट स्केल में एक नया ब्रांड आ रहा है, उसके बारे में आप 7 पॉइंट रेटिंग स्केल पे रेट कर रहे हो. तो आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके परसेप्शन को एक रेटिंग स्केल पे डाल दे रहे हो, अच्छा या बुरा में. तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेटिंग स्केल हो जाएगा. लेकिन रैंकिंग स्केल क्या बोलेगा? आस्क टू रैंक ऑर्डर इंपॉर्टेंस ऑफ कंफर्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्राइस. अब मुझे बोलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर यहाँ पे ऑटोमोबाइल बाइक का एग्जांपल है तो यहाँ भी बाइक को कंटिन्यू करते हैं. जैसे किसी बाइक को आपको अब रैंक करना है, रैंक करने में आपको कंफर्ट का ध्यान देना, इकोनॉमी, परफॉर्मेंस और प्राइस को. पहले वाले में आप बिना कंपेयर किए 7 पॉइंट स्केल पे आप रेटिंग कर रहे थे, यहाँ पे आप रैंक करेंगे
और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बीच में आप रैंक करोगे, कंफर्ट, इकोनॉमिक, परफॉर्मेंस एंड प्राइस ऑफ द टारगेट व्हीकल। तो आप इन चारों में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या लगता है? आप कंफर्ट को फर्स्ट रैंक दोगे, इकोनॉमिक को सेकंड रैंक दोगे, परफॉर्मेंस को, लेकिन यहाँ पे जब भी रैंक दे रहे हो आप, तो यू आर बेसिकली कंपेयरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स एंड देन यू आर रैंकिंग इटसेल्फ। तो रेटिंग और रैंकिंग में ये डिफरेंस, रेटिंग में आप विदाउट कंपैरिजन ऑफ द एटीट्यूड और परसेप्शन आप डायरेक्टली स्केल डाउन करते हो, लेकिन रैंक करना आप अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर में कंपेयर करके आप रेट करते हो। कैटेगराइजेशन, नेक्स्ट एग्जांपल, पर्टिकुलर प्रोटोटाइप डिजाइन वुड अपील टू यूथफुल और मैच्योर ड्राइवर वुड रिक्वायर अ कैटेगरी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। एक प्रोटोटाइप डिजाइन है वो यूथफुल मतलब यंग पीपल को और मैच्योर ड्राइवर्स को, वो दोनों अगर कैटेगराइज कर दे, किसको ज्यादा अपील करेगा? अगर आपसे पूछा जाए यूथफुल ड्राइवर्स मतलब यंग ड्राइवर्स हैं, एक मैच्योर ड्राइवर्स हैं, और एक नया प्रोटोटाइप आ रहा है डिजाइन इंजन का या फिर किसी बाइक का, तो वो प्रोटोटाइप यंग को ज्यादा अपील करेगा या फिर मैच्योर लोगों को ज्यादा अपील करेगा? अगर ये करता है तो आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो और इसको कैटेगराइज कर सकते हो यंग और मैच्योर पीपल में। तो यहाँ कैटेगराइजेशन उनके प्रेफरेंसेस और चॉइस के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे हम उनको अलग करते हैं, उसको कैटेगराइजेशन बोलते हैं। लास्ट वन इज सॉर्टिंग, फोटोज और इमेजेस और वर्बल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स फीचर्स सच एज वेरियस डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ द कार्स परफॉर्मेंस। अब आप सॉर्ट कैसे करते हो? आप इमेज रखते हो, वर्बल स्टेटमेंट्स रखते हो और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट फीचर को वेरियस डिस्क्रिप्टिव्स के बेसिस पे सॉर्ट करते हो, अलग करते हो। तो आपने फोटो शेयर किया और उस फोटो के बेसिस पे पूछा कि ये आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो अच्छे लगने वाले को एक तरफ रख दिया, बुरे लगने वाले को एक तरफ रख दिया। स्टेटमेंट यूज किया तो पॉजिटिव वाला एक तरफ रख दिया, नेगेटिव वाला एक तरफ रख दिया। फिर आपने काउंट करके देख लिया कौन सा पाइल बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बेसिकली आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो सॉर्ट कर रहे हो। तो ये 4 बेसिक रिस्पॉन्स टाइप्स हैं जो आपको किसी भी रिसर्च में तय करना पड़ता है। तो ये कुछ मार्क्स आ जाएंगे वीडियो विंडो चेंज करने की वजह से, बट आई हैव ऑलरेडी रिटरेटेड पॉइंट्स व्हिच इज बीइंग देयर इन द स्लाइड। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है डेटा प्रॉपर्टीज। डेटा प्रॉपर्टीज में क्या आता है? जैसे हम लोग ने पढ़ा था, डेटा प्रॉपर्टीज में हमारे पास 4 तरह के स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स जहां पे हम की चीजों को कैटेगराइज करने और आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स को यूज करते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर रोल नंबर, और जब कोई बंदा किसी दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके जर्सी नंबर का जो मैंने एग्जांपल लिया था, या फिर आप मेल फीमेल में जब डिवाइड करते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर रीजन को आप एक जैसे 1 to 29 स्टेट्स आर देयर, आप हर स्टेट को कोई रेटिंग कर देते हो या नंबर असाइन कर देते हो, वो सारी चीज नॉमिनल स्केल में काउंट होंगे। तो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए और कैटेगराइजेशन के लिए जो नंबर्स आप यूज करते हो वो नॉमिनल स्केल में आता है। ऑर्डिनल स्केल आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंक की जाती है। मतलब जो मैंने रेस का एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, तो रेस में क्या होता है कि जब मैंने शुरुआत में जर्सी नंबर असाइन कर दिया 20, 30, 40, 50, लेकिन 40 वाला फर्स्ट आ गया, 30 वाला सेकंड आ गया, और ऐसे करके जो उसके रैंक बने उसके बेसिस पे 1, 2, 3, 4 जो रैंक मैंने दिया उनके बेसिस, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो ऑर्डिनल स्केल होगा। इंटरवल स्केल मतलब कि मैंने एक कंटिन्यूम बना दिया। ऑर्डिनल स्केल में फाइट क्या था कि एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दूसरे परफॉर्मेंस से कितना दूरी पे है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस में, वो ऑर्डिनल स्केल से पता नहीं चल पाता था। तो इंटरवल स्केल में हम लोगों ने क्या किया कि उसको एक कंटिन्यूम बना दिया, कंटिन्यूम में उनके परफॉर्मेंस को किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसको बता दिया। उससे अब ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर स्केल में फर्स्ट परफॉर्मेंस से सेकंड का डिफरेंस, सेकंड से थर्ड का डिफरेंस, मुझे एग्जैक्ट कितना डिफरेंस है वो मुझे पता चल जाता है इंटरवल स्केल में। रेशियो स्केल जो सबसे हाईएस्ट ग्रेडेड स्केल है और जहां पे सारी कैलकुलेशन हो सकते हैं, वो बेसिकली एक एब्सोल्यूट जीरो को कंसीडर करके चलता है। जैसे यहाँ पे हाइट ले लो आप, वेट ले लो आप, और जनरल नंबर्स ग्रेडिंग सिस्टम में जहां पे जीरो से चीजें स्टार्ट हो, एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट हो, तो वहां पे उन सारे नंबर्स को यूज करके उनके बेसिक डिवीजन करके परफॉर्मेंसेस निकाली जाती हैं। तो वो सब रेशियो स्केल का पार्ट होता है। तो जब आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, डेटा का प्रॉपर्टीज आपको तय करना पड़ता है। स्केल सेलेक्ट करने से पहले आपके पास नॉमिनल ऑर्डिनल के लिए अलग तरह का स्केल यूज होगा, इंटरवल के लिए अलग स्केल यूज होगा, रेशियो के लिए अलग स्केल होगा।
आप कई बार इंटरचेंजेबली यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको पहले तय करना पड़ेगा कि आपका डेटा का स्केल क्या होगा, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, इंटरवल होगा और रेशियो स्केल होगा। तो आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर्स ऑफ डायमेंशंस। नंबर्स ऑफ डायमेंशन मतलब यूनिडायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। यूनिडायमेंशनल जिसमें सिर्फ आप एक चीज पे फोकस करके आप उस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, और मल्टी डायमेंशनल मतलब वो कई मल्टीपल डायमेंशंस पे चीजों को आप सेग्रीगेट करके उसको रेट करवाना चाहते हो, या उसका एटीट्यूड और परसेप्शन चेक करना चाहते हो। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसके लिए, वन मेजर ऑफ द एक्टर स्टार पावर इज हिज और हर एबिलिटी टू कैरी अ मूवी। आप मेजर करना चाहते हो किसी स्टार के किसी मूवी को कैरी करने की कैपेसिटी, आप एबिलिटी चेक करना चाहते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज चेक कर रहे हो, आप यहाँ पे एक डायमेंशन को चेक कर रहे हो कि स्टार के किसी मूवी को कैरी करने की कैपेसिटी, मतलब उसके सक्सेसफुल होने के किसी स्टार की गारंटी। लाइक अपने इंडस्ट्री में सलमान खान साहब बहुत फेमस है, तो सलमान खान साहब के किसी पर्टिकुलर मूवी के सक्सेसफुल बनाने की कैपेसिटी में सिर्फ एक डायमेंशन के रूप में चेक करना हूं, वो कैरिंग कैपेसिटी बोल रहा हूं मैं। तो वो एक डायमेंशन हो गया। लेकिन मैं इसी चीज को अगर मैं अलग अलग पैरामीटर में डिवाइड कर दूं, एक डायमेंशनल है कि सिर्फ वो मूवी को कैरी कर पाते हैं नहीं, उस स्टार का चेक कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ यूनिडायमेंशनल यूज कर रहा हूं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल की बात करूं तो मैं इसमें इसी चीज में तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट डायमेंशन ऐड कर सकता हूं, जैसे टिकट सेल्स इन लास्ट 3 मंथ्स, स्पीड ऑफ अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, आपको कितने ऐड मिलते हैं, मीडिया बज, मीडिया आपके बारे में क्या बोलती है, ट्वीट्स, कवरेज, यूट्यूब वीडियोस, ये सब सारी चीजें, और लास्ट 3 मूवीज में आपके रिवेन्यू जनरेशन कैसा रहा है। अब ये पहले वाले में सिर्फ कैरी था तो ये यूनिडायमेंशनल हो गया। सेकंड वाले में सेम सब्जेक्ट मैटर है लेकिन उस पर 3-4 चीजों को एज ए पैरामीटर ऐड कर दिया गया, तो ये मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले में मैं मूवी कैरी करने के, मूवी को सक्सेस बनाने के चांसेस देख रहा हूँ, लेकिन वो चांसेस को मैं यहाँ पे और कुछ डायमेंशंस ऐड करके मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जहां पे मैं सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर मैं काम करूं यूनिडायमेंशनल, और मल्टीपल पैरामीटर पे काम करूं तो मल्टी डायमेंशनल। आगे बढ़ते हैं। इज इट फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नाउ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, क्वेश्चनर और स्केल जो होगा वो हम बैलेंस चूज करेंगे, अनबैलेंस चूज करेंगे। बैलेंस चूज करना और अनबैलेंस चूज करने का मतलब, बैलेंस्ड हैज एन इक्वल नंबर ऑफ कैटेगरीज अबव एंड बिलो द मिड पॉइंट। बैलेंस रेटिंग स्केल में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस पर दोनों तरफ से बैलेंस नंबर होते हैं। अनबैलेंस्ड में न्यूट्रल पॉइंट से एक तरफ ज्यादा ग्रेडिंग पॉइंट्स होंगे और दूसरी तरफ कम होंगे, तो उसको अनबैलेंस रेटिंग स्केल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे इस वाले में ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड में वेरी पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये जो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट सब एक जैसे पैरामीटर है, मतलब पॉजिटिव है। निगेटिव फेयर के बाद सिर्फ एक है, तो एक तरफ तो ये 3 सिमिलर पैरामीटर्स हो गए और एक निगेटिव हो गया, तो 3/1 का बन गया। फेयर को आप न्यूट्रल मान लो अगर, तो न्यूट्रल के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक पैरामीटर है और लेफ्ट हैंड न्यूट्रल के राइट हैंड साइड पे 3 पैरामीटर्स हैं, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये एक बेसिकली, मूव बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, हाँ, बैलेंस और अनबैलेंस में यही डिफरेंस होता है कि आपके न्यूट्रल के दोनों तरफ अगर सिमिलर नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं तो वो बैलेंस्ड होगा, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड होगा। जैसे इसमें 3:1 का रेशियो है, उसी तरह से बैलेंस्ड वाले में क्या है, वेरी पुअर, पुअर, नीदर पुअर नॉर गुड, लेकिन गुड एंड वेरी गुड। तो 2 पैरामीटर्स इस तरफ हो गए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, और 2 पैरामीटर्स लेफ्ट हैंड साइड पे। तो न्यूट्रल पॉइंट के दोनों तरफ 2-2 अगर पॉइंट हो गए और इक्वल नंबर ऑफ पैरामीटर्स न्यूट्रल के बाद है, मान लो 3-3 भी हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ न्यूट्रल के दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं तो वो बैलेंस्ड होगा। जहां पे एक तरफ ज्यादा हो और दूसरी तरफ कम हो वो अनबैलेंस्ड होगा। तो ये भी आपको स्केलिंग टेक्निक चूज करने से पहले तय करना पड़ता है कि आप वो बैलेंस्ड स्केलिंग टेक्निक लेके चलने वाले हो, रेटिंग स्केल लेके चलने वाले, अनबैलेंस्ड रेटिंग स्केल लेके चलने वाले हो। इसके बाद आता है
फोर्स्ड और अनफोर्स्ड चॉइसेस। आप जो स्केल यूज करते हो वो फोर्स्ड चॉइस होगा या अनफोर्स्ड होगा। तो फोर्स्ड चॉइस और अनफोर्स्ड चॉइस बोलते किसको, उसको एक बार देख लेते हैं। अनफोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल प्रोवाइड्स पार्टिसिपेंट विथ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस नो ओपिनियन when they are unable to make a choice amongst the alternative। अनफोर्स्ड चॉइस किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक नो ओपिनियन वाला भी डालते हैं, जैसे न्यूट्रल, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव परसेप्शन रखता है या निगेटिव, मतलब ऐसे लोग जो अनश्योर हो उनको एक नो चॉइस भी हम उस पर इंकॉर्पोरेट करते हैं, वो अनफोर्स्ड होता है। फोर्स क्या होता है, जिसमें न्यूट्रल कोई चॉइस नहीं होता, आपको उस उन 4 या 5 ऑप्शंस में से ही चूज करना पड़ता है जो वो प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रल जैसा फोर्स्ड वाले में नहीं होगा। रिक्वायर्स दैट पार्टिसिपेंट सेलेक्ट वन ऑफ द ऑफर्ड अल्टरनेटिव्स। तो इसमें न्यूट्रल है अगर बंदा तो उसकी चॉइस नहीं मिलती। आप एग्जांपल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये पहला वाला अनफोर्स्ड है क्योंकि इसमें नॉट श्योर भी इंक्लूड किया गया। दूसरे वाले में हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन यूजिंग न्यू ब्रांड, इस पे मैंने कहीं भी न्यूट्रल डाला ही नहीं। अब ये फोर्स्ड का एग्जांपल है क्योंकि मैं इसमें न्यूट्रल मतलब नॉट श्योर वाला चॉइस मैंने दिया नहीं है, तो इनको फोर्सफुली इन 4 ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा, बल्कि उनको जिनको कोई श्योरिटी नहीं है वो उनको कोई ऑप्शन इन पे मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं फोर्स्ड और अनफोर्स्ड। अब इस पे भी स्केलिंग टेक्निक बनाने से पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आपको पहले से तय करना पड़ता है कि आप अनफोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल बनाने वाले हो या फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल बनाने वाले हो। फिर नंबर ऑफ स्केल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है स्केलिंग टेक्निक को डिसाइड करने के लिए। तो स्केल शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर इट्स पर्पस। उस पे आप नंबर्स तय करते हो। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट के जैसे डिओड्रेंट है उसके लिए 3 to 5 पॉइंट स्केल हो जाएगा, लेकिन हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, लग्जरी गुड्स और ऑटोमोबाइल्स यू आर गोइंग टू यूज 5 to 10, आपसे 5 to 11 स्केल पॉइंट्स हो जाएंगे। जितने ज्यादा स्केल होंगे रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी, लेकिन कम्बरसम होता चला जाता है। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन वेरी मिनिमल नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो ये थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है जब आप क्वेश्चनर डिजाइन करने के लिए चलते हैं। तो ये मेजरमेंट स्केल टेक्निक करने में आपको ये भी तय करना पड़ता है कि आप लेस नंबर ऑफ मेजरमेंट पैरामीटर्स लेके चलने वाले हो या मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो इसमें ये क्राइटेरिया होता है कि अगर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो आप कम नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, लेकिन आपके हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, लग्जरी गुड्स और ऑटोमोबाइल्स, यू आर गोइंग टू यूज 5 to 11 पॉइंट स्केल्स। आगे बढ़ते हैं। रेटर्स एरर्स। रेटर्स एरर बेसिकली इस पे 2 तरह के एरर्स आते हैं और इसको रिमूव करने के दीज आर द 4 टेक्निक्स। अब जैसे what this statement is saying, the value of rating skill depends on the assumptions that a person can and will make good judgments. Before accepting participants rating, we should consider their tendencies to make errors of central tendency and halo effect, because value of rating scale depends on the assumption that a person can and will make good judgments। आपके रेटिंग स्केल के सफल होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन आपको फीडबैक दे रहा है वो एक अच्छा जजमेंट कर सके। बिफोर एक्सेप्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेटिंग वी शुड कंसीडर देयर टेंडेंसीज टू मेक एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड हैलो इफेक्ट। हमको पहले से पता होना चाहिए कि वो सेंट्रल टेंडेंसी वाले एरर क्रिएट करने वाला है या उसके चलते हैलो इफेक्ट क्रिएट होगा। तो जैसे सेंट्रल टेंडेंसी एरर कैसे जनरेट होता है, सम रेटर्स आर रिलेक्टेंट टू गिव एक्सट्रीम जजमेंट्स एंड दिस फैक्ट अकाउंट्स फॉर एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लाइक फ्यू पीपल usually give extreme feedback, I'm highly satisfied, and in most of the questions they are highly satisfied. So at the end of it you'll not see any difference in their perception or attitude. Ultimately this questionnaire is not going to be of any use. तो जहां पे एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के उस तरह के रिस्पॉन्सेस हो, तो वैसे एरर जो क्रिएट होते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी एरर कही जाती है। दूसरा है पार्टिसिपेंट में ऑल्सो बी इजी रेटर्स और हार्ड रेटर्स, मेकिंग व्हाट इज कॉल्ड एरर ऑफ लेनियंसी। या तो बहुत लीनियंट होकर रेट करने लगे या बहुत हार्श होकर रेट करने लगे, दोनों एक्सट्रीम केसेस में आपको लेनियंसी इफेक्ट डालते हैं। तो इन चीज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। हम
स्ट्रेंथ जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं क्वेश्चनर में अपने इंस्ट्रूमेंट में, उनके स्ट्रेंथ को हमको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि आप एक्चुअली क्वेश्चन के इंटेंशन को अपने रिस्पोंडेंट को समझा सके। सेकंड, स्पेस एंड इमीडिएट डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस फार्दर पार्ट। दोनों इंटरमीडिएट डिस्क्रिप्टिव जो हम लगते हैं फ्रेजेस यूज करते हैं, उसको हम थोड़ा सा स्पेस यूज करके यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कम्बरसम फ्रेजेस अगर आप डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस यूज करते जाओगे तो वो कम्बरसम हो जाएगा और चीजें क्लियर होकर नहीं आ पाएंगी। तो आप स्पेस द इंटरमीडिएट डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस फार्दर अपार्ट, तो उनको थोड़ा दूर करके स्प्रेड आउट करके अगर आप डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस यूज करते हो तो वो अच्छे से किसी भी पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को कन्विंस कर पाएगा। फिर आता है प्रोवाइड स्मॉलर डिफरेंसेस इन मीनिंग बिटवीन द स्टेप्स नियर द एंड्स ऑफ द स्केल देन बिटवीन द स्टेप्स नियर द सेंटर। अब बोलते हैं कि आप स्मॉलर डिफरेंसेस मीनिंग बिटवीन द स्टेप्स नियर द एंड्स और स्केल देन बिटवीन द स्टेप्स नियर द सेंटर। अब ये डिपेंड करता है, आपको स्मॉलर डिफरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, या तो आप सेंटर के बीच में फीडबैक लेना चाहते हो या एक्सट्रीम एंड्स पे फीडबैक लेना चाहते हो, तो आपको स्केल जो बना रहे हो उसमें इतने बैलेंस हो कि आप बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड सेंटर में भी ना दिखाई दो, ना एक्सट्रीम एंड्स पे दिखाई दो किसी भी रेटिंग स्केल पे, तो वो चीजों को और ज्यादा परफेक्शन के साथ आप फीडबैक ले पाओगे। यूज मोर पॉइंट्स ऑफ स्केल, अल्टीमेटली आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्केल्स यूज करोगे तो रिस्पॉन्सेस, सारे टाइप के रिस्पॉन्सेस, हाईली सेटिस्फाइड और हाईली डिससेटिस्फाइड बोल देने से दीज आर द टू एक्सट्रीम्स, लेकिन इसके बीच में भी कई छोटे छोटे इंटरमीडिएरीज रहते हैं, वो जितने ज्यादा इंटरमीडिएरीज होंगे लोग उससे ज्यादा एसोसिएट करके अच्छे से फीडबैक दे पाएंगे। सो ये दीज आर द सम बेसिक पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी सेलेक्ट मेजरमेंट स्केल। इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे हम मेजरमेंट स्केल चूज करते हैं। इसी मेजरमेंट स्केल को हम और जब ये सारे एट्रीब्यूट्स को ध्यान में देते तब मेजरमेंट स्केल को चूज किया जाता है। आई थिंक in terms of video lectures, I think this particular video lecture must have crossed half an hour. I'm trying my level best to sort it down, but I'm not able to do this. Thank you so much for watching.